वीडियो देख रहे सारे विद्यार्थियों ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਇ 5 ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ जो कंप्यूटर ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਤਰਤੀਬ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਸਧਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਛੋਟਾ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਸਲ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਕਿਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਫ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਫ ਐਲਸ ਜੇ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲ ਵਧੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਲਸ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਐਲਸ ਇਫ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਿਚ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਵੀ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਵਿਚ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਲੂਪਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੂਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਉਸਨੂੰ ਲੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਲੂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੂਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਫॉर ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਵਾਈਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਡੂ ਵਾਈਲ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੂ ਦਿਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲ ਵਧੋ। ਜੰਪਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ, ਜੰਪ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਐਂਡ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਉਪ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗੋ ਟੂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਬ੍ਰੇਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਕੇ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਦੈਨ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰੁਕੇ ਨਾ। ਦੈਨ ਗੋ ਟੂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਗੋ ਟੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। डिज़ाइन मेकिंग और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मतलब तुहाडा दिता गया, दिती गई शर्त किस तरह डिसीजन चलती है। पहला इफ स्टेटमेंट किवें चलती है, इसका एक्सप्रैशन है, सिंटैक्स है। इफ एक्सप्रैशन जिहड़ा तुसीं एक्सप्रैशन या शर्त दिती है, जिवें कि मिसाल लई इंट ए बी सी 3 डाटा टाइप वेरीएबल है, इंटीजर डाटा टाइप दे, इन्हां नूं वैल्यू देती 10 5 ते 10। कंडीशन लागू की इफ तुहाडा एक्सप्रैशन आ जे ए बी तो वड्डा है तां की चले C = C + 5 ते बाद चों की प्रिंट होवे 15। कंडीशन लागू होने तो बाद कुछ भी जो तुसी लगाया है वो चले। इफ एल्स मतलब इफ स्टेटमेंट विच पहला मूल्यांकन किया जाता है, जेकर ये ठीक होंदा है तो स्टेटमेंट 1 लागू होंदी है। दैन 2 आ देखो इत्थों प्रोग्राम स्टार्ट होंदा है। आ पहली कंडीशन है, जे सही कंडीशन है तो इत्थों आप आउटपुट होके बाहर आ जाए, जे कंडीशन गलत है तो आ लूप। इस तरह नाल सेम। नाउ इफ एक्सप्रैशन पहला तो यह कंडीशन स्टेटमेंट चेक करेगा, एल्स कंडीशन दूजी चेक करेगा स्टेटमेंट 2। जिमें ए बी सी चेक हो गई, सी की वैल्यू 7, दैन सी की वैल्यू इदा आ गई। जे कंडीशन सही है तो इदा, नहीं तो आ। ये प्रोग्राम एक अंक नूं स्वीकार करता है, एक्सैप्ट करता है, और जेकर नंबर ऑड है तो उसनूं छापता है। ऑड नंबर किहड़े हुंदे हन, जिहड़े जिन्हां दा रिमाइंडर 0 ना आवे। 5 1 फॉर एग्जाम्पल ये छोटा जिहा प्रोग्राम है जिस दे विच तुसीं एक नंबर एंटर करते हो, एक्सैप्ट करवाउंदे हो यूज़र तो, दैन उसकी आउटपुट लैंदे हो। इसनूं जे आपां सीधे प्रोग्राम दे विच बना के देखिए तो एक डाटा टाइप A, उस तो यूज़र तो वैल्यू इनपुट करवानी है। दैन तुसी कहना है कि ए नंबर ऑड है, आ कंडीशन लगी हुई है एक्सप्रैशन A दे रिमाइंडर जे 0 नहीं है तो नॉट इज = इसनूं कंपाइल करो। दैन जे आपां नंबर 7 प्रिंट करते हाँ, एंटर, दिस इज ऑड नंबर। ये सिर्फ इफ स्टेटमेंट है। जे इसनूं तुसी कहोगे कि 6 नंबर प्रिंट करना है तो आउटपुट नहीं आएगी। द रीज़न क्योंकि एल्स दे विच कुछ नहीं लग्या, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई। सेम उस तरह तुसी अलग अलग कंडीशनस 3 नंबरां दे विचों वड्डा नंबर लभना है, किहड़ा है। लूप चलेगा, लूप के अंदर तुसी 3 नंबर इनपुट करवाओगे। पहली स्टेटमेंट जे ए बी नालों वड्डा है एंड ए सी नालों भी वड्डा है। ये दोने कंडीशन लागू सही हुंदियां हन, दैन प्रिंट करे जे कंडीशनस इन्हां चों एक लागू हुंदी है तां भी ये प्रोग्राम अगे नहीं वधना। ये स्टेटमेंट नूं अगे वधन लई दोने कंडीशन सही करनियां पैणगीਆਂ। इस कंडीशन दे विच सीधा सीधा ये पता लग जाएगा कि ए बी ते सी दोनों नालों वड्डा है। दैन प्रिंट होएगा %f। आ 7.3 गलत पिया होया है, ये नहीं पाना तुसी, ये गलती ना टाइप होया है। %f कॉमा ए बी या सी जिहड़ा भी प्रिंट कराउणा इत्थे %f ए हो जाएगा कि ए सब तो वड्डा है। दैन एल्स इफ पहला तुहाडी कंडीशन, फिर उस बाद चेक करे, मतलब कंडीशन के अंदर कंडीशन लगी हुई है, बी चेक करो कि बी ए ते सी नालों वड्डा है। जे नहीं है इफ दा दैन एल्स लग्या होया है, दैन सी प्रिंट होएगा। यू डोंट
ध्यान रखना तुसी इत्थे जिवें परसेंटेज F पिया होया है, इत्थे 7.3 गलती ना पिया होया है, ये तुसी नहीं लाना। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चेंज करना, टैंपरेचर चेक करना, रेशो फाइंड आउट करनी, ये सब कंडीशनस दे हिस्से हैं। तुसी मार्क्स प्रिंट आउट करने हैं। उस तरह ही जे तुसी ग्रेड फाइंड आउट करने हैं कि इन्ने नंबरां दा इन्ने नंबर आए हैं, उसका कितना ग्रेड होगा, ये सिंपल कंट्रोल स्टेटमेंट्स नाल लागू हो सकता है। इफ जे मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 75 दैन ग्रेड ए, एल्स आहा, इफ फिर वो अंदर लग्या, एल्स तो बाद अगे कंडीशन लगी हुई है, स्टेटमेंट लागू नहीं हो रही, कंडीशन लागू हो रही है। होर जे 60 तो होते ने बी ग्रेड, दैन फिर अगे कंडीशन, दैन एल्स। नाउ असी आने आ स्विच स्टेटमेंट्स। स्विच मतलब एक कंडीशन तो सीधा दूसरी कंडीशन ते। असी देखा है कि इस स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट्स में चुनिया जाता है तो एक्सप्रैशन के मुल्लां नूं स्विच करदा। स्विच विच अनेकां स्टेटमेंट्स हुंदियां हन ते उन्हां नूं एक जी चुनिया जाता है। अंकां दे मुੱਲ इंटीजर, बाइट, शॉर्ट या लॉन्ग हुंदे हन। कैर एक्सप्रैशन भी हुंदे हन, आधारित भी हो सकता है, केस आधारित भी हो सकता है। इस तरह इसका सिंटैक्स है। इत्थे तुसी एक कंडीशन लगी हुई है, जे ट्रू है तो कंडीशन चलेगी, दैन सीधा आउटपुट ते बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। जे नहीं है तो अगली कंडीशन ते अगली कंडीशन ते। इन्हां दे विचों जो भी इत्थे चॉइस भरी जाएगी उस चॉइस के अकॉर्डिंग सीधा उस ते चला जाएगा, विचाले चूज नहीं होगा। उसे नाल कंडीशन सही होने तो बाद आ जाएगा। वैल्यू 1 दी की एक्सप्रैशन हो, स्टेटमेंट हो, ब्रेक रुक जाए उत्थे, ये सारा एक्सप्रैशन पर डिपेंड करता है। दैन ब्रेक स्टेटमेंट मतलब कोई चलते हुए लूप नूं रोकना। कई बार एक लूप नूं लागू करते समय ये जरूरी हो जाता है कि लूप का कुछ भाग छड्डिया जाए, स्किप किया जाए, तो उत्थे ब्रेक कंडीशन देनी पैंदी है। एक ब्रेक अंदरूनी लूप तो बाहर निकलन का कारण बनती है या तुरंत ही प्रोग्राम तो बाहर निकलना होवे। याद रखना, देखो दो वेरीएबल ने ए ते नम दी वैल्यू 0 तुसी घोषित करती, दैन फ्लोट सम दी वैल्यू 0, दैन एवरेज। प्रिंट होवे इनपुट दा मार्क्स -1 टू एंड किन्ने होने चाहिए, वाइल जे कंडीशन आहा वा, वाइल 1 स्कैन एफ एना, इफ ए इज इक्वल टू हुण इहदी बराबर मूल्यांकन करने लई इज इक्वल टू 2 बार -1 ब्रेक रुक जावे। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप कम्मां दे दौरान कुछ विशेष हालातां दे अधीन लूप दी बॉडी का एक भाग तो अलग होना जरूरी हुंदा है। मतलब तुसी एक भाग नूं दूजे तो अलग करना होवे तो उत्थे कंटिन्यू स्टेटमेंट की वरतों की जाती है। इंट ए नम सम, then for a is equal to 0 कंडीशन जे a दी वैल्यू 0 आ स्टार्टिंग दे विच इनिशियलाइज कीता, इत्थे तुसी a दी वैल्यू इनिशियलाइज कीती, फिर चेक कीता कि a दी वैल्यू 5 तो घट है, जे नहीं है तो a++ ए दे विच एक वैल्यू ऐड हो जाए तो इत्थे आ जाए। हुण a दी वैल्यू 1 होगी, फिर नहीं सही, ये लूप 4 बार चल के जो 5वीं बार चलेगा, चौथी बार क्योंकि इज इक्वल टू नहीं है, जो दी वैल्यू 4 होगी दैन उस तो बाद लूप एंटर हो जाए, एग्जिट हो जाएगा। इफ वैल्यू सेम नंबर ऐड करना। स्विच स्टेटमेंट की वरतों नाल दिन प्राप्त करने लई किहड़ा दिन चलता है, स्विच जिहड़ा तुसी इत्थे डे भरोगे वो सीधा प्रिंट हो जाएगा। केस स्टेटमेंट्स डिवीजन बाय 0, हमेशा याद रखो जो भी तुहाडा प्रोग्राम है या स्टेटमेंट है, जब तक तुसी खुद उसनूं बना के नहीं देख सकते, बना के नहीं देख लेंदे, उदों तक तुहानूं उसदे बारे नहीं पता लगना। कंट्रोल फ्लो बस एक महत्वपूर्ण स्टैप है जिस दे नाल तुसी आपदियां शर्तां नूं किस तरह लागू करना है ये दस दिओ। स्टेटमेंट्स किस तरह चलन, अपने फोन या अपनी टैबलेट या अपने कंप्यूटर दे विच सी कंपाइलर डाउनलोड करो,
और प्रोग्राम बनाओ, आपदियां शर्तां रखो, आपदे स्टैप्स रखो, आपदियां कंडीशनस रखो। देखो कि वो कंडीशनस तुहाडे दिते हुए कंडीशन के मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा। जब तक तुसी ये चीज़ां नहीं सीखते तुहानू किसी भी लैंगुएज नू सीखना औखा होवेगा। याद रखो, किसी नवीं भाषा नू सीखना, तुसी बोलना भी सीखना है या लिखना सीखना है। जब तक तुसी उसका अभ्यास नहीं करते उदों तक नहीं चंगी तरह पता लगता। सो कंपाइल करो, बी क्रिएटिव। जे कुछ नहीं पता लगता तो मेरे नाल संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।